तो जैसा जैसा मेरा पहला एक्सपीरियंस था कोर्ट को लेकर, तो मैं तो उस फिल्म में गया ही था मजाक। अच्छा। तो मैं जाने तैयार नहीं था, जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन सोचा चलो फिल्म कैसे बनती है जरा नजदीक से देख लिया जाए। पढ़ने में क्या, देखने में मजा आएगा कि फिल्म बनाए थे कैसे। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो मेरी फीस तय हुई थी पहली बार, और मुझे लगा कि यार ये लोग पागल लोग हैं, मुझे इतना पैसा क्यों दे रहे हैं। Welcome to the first ever podcast of Screen to Script. Today we have two very special guests with us. To start with, we have Mr. Vipul Kalyan. We already talked about Mr. Vipul Kalyan's movie on our Instagram page. It's called Tip. So this podcast is related to the movie Tip. And Vipul Kalyan is an independent filmmaker from Maharashtra. His movie has been selected for many film festivals now. And we watched it. It's an amazing movie. And further in the podcast, we will talk about Tip. We talk about his life, his journey, and so on. Thank you so much for such a wonderful introduction. Thank you so much for having me. With us, we have a great writer, human rights activist, and a pure Ambedkarite at heart, and of course, actor. Par excellence. We have seen him in the internationally acclaimed film Court, and absolutely in the short film Tip, which has been directed by Vipul ji. So we welcome Shri Veera Sathidar ji. Sir, namaskar. Hello sir. Namaskar sir. Namaskar. We welcome you both. We are very happy, very elated to have you both. It's an honor for both of us, Sajeev and myself. And आपका precious time निकाल के you have joined us in this podcast of Screen to Script. So welcome. We welcome you both. Yes. Thank you so much, Sajeev and Manthan. Thank you for having us here on your platform, and it means a lot. So the pleasure is all ours. So yes, so let's talk about the short movie Tip first of all, and then talk about different things while we go on. So Tip है विपुल जी. I saw the movie. Thank you so much. आपने हम ट्रेलर रिलीज के पहले ही मूवी का जो लिंक है शेयर किया था, तो we liked it a lot personally. I mean, absolutely. 15 minutes, the idea that you captured and the way that it has been portrayed, it's beautiful. विपुल जी, एक चीज मुझे जो बहुत अच्छी लगी, you did not use a background score in the movie. Like most of the time, मूवी में एक background score नहीं था, और वीरा सर जो मतलब उस मूवी के अंदर जो उनका कैरेक्टर था एक सिक्योरिटी गार्ड का, तो वो जब कुछ भी एक्टिविटी रहते तो उसके पीछे एक background score नहीं था. It was just all the natural scenes, natural sound. So it made us feel more relatable to the movie. तो हमें लगा कि हम भी उसी के अंदर है, and then it felt very relatable. So was it your idea not use any background? हम लोग मतलब हम दोनों immersed हो गए थे बिल्कुल. ये वो 15 मिनट की मूवी हो, बट बिल्कुल immersed हो गए थे. बिल्कुल वो naturalistic feel, एक realistic feel आ रही थी उसमें. So वो आपका आइडिया था कि मतलब कैसे वो? It was a very conscious decision. और हमने मैंने जब स्टोरी ये सोची थी कि मुझे करना है, तो मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं वीरा सर को कास्ट करके फिल्म करूंगा. एक्चुअली आई हैव रिटन दिस फिल्म बैक इन 2014, 6 years back. And the idea came in 2014 when I was traveling from Prithvi to Andheri. I used to go to Prithvi a lot. तो जब मैं रोज जाता था, तो फिर रिटर्न में आते आते मुझे 12, 12:30 रात का हो ही जाता था. तो फिर रात को फिर घर पे जाके खाना बनाना, तो वो पॉसिबल was not possible. तो फिर अंधेरी में एक होटल था, होटल विक्ट्री, तो वहां पे मैं खाना खाने जाया करता था रात को. तो वहां पे जो वेटर थे, तो उनको मैं रोज खाने के बाद कुछ टिप के तौर पे कुछ दिया करता था, क्योंकि मैं आई वाज द लास्ट कस्टमर. तो मुझे लगा था कि चलो इनको कुछ देना चाहिए. रियल लाइफ एक्सपीरियंस है. बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस है. तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं गया वहां पे खाना खाने के लिए, बट मेरे पास टिप के पैसे नहीं थे. अच्छा. आई वाज हैविंग अ वेरी लिमिटेड अमाउंट.
Okay. और इट वाज अ मंथ एंड, तो मुझे फिर आगे के 1-2 दिन भी सरवाइव करना था, तो आई कुड नॉट अफोर्ड टू गिव टिप. You can imagine. So मैंने we have been to all the same places. So फिर मैंने सोचा कि अब इनको टिप तो आज दे नहीं पाऊंगा, तो फिर मैं खाना खाते खाते भी वही सोच रहा था कि यार मैं तो इनको रोज टिप दे रहा हूँ और इनको शायद आदत हो गई है टिप लेने की, और अगर मैं आज इनको टिप नहीं देता हूँ तो ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कहीं कुछ गलत ना सोच लें कि यार जिन्होंने टिप क्यों नहीं दिया. तो वही बस सोचते मेरा डिनर. हाँ, तो कहीं ना कहीं मैं कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में मेरा एक ये चल ही रहा था कि यार मैं इनको आज खाना तो खा रहा हूँ लेकिन आज मैं टिप नहीं दूंगा तो क्या होगा इनका, यानी रिएक्शन क्या देता है. तो बस मैंने फिर डिनर ऑर्डर किया, फिर डिनर मेरा हो गया, फिर उन्होंने बिल ला के दिया और मैंने उनको पैसे दिए, जितना बिल था उतना ही. तो उन्होंने पैसे गिने और मुझे देखा, फिर से पैसे गिने, एंड देन ही गेव मी अ स्वीट स्माइल एंड दैट्स इट. तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं इतना क्यों सोच रहा था, यानी ठीक है, यानी तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि यार ये एक एक्सपीरियंस तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ही, लेकिन एक ह्यूमन नेचर के बारे में मुझे पता चला कि यार लोग के बारे में जो सोचते हैं और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि खुद ही से हम एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं कि यार ये आगे वाला ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा होगा हमसे. सो समटाइम्स वी आर रॉन्ग और ह्यूमंस आर वेरी जजमेंटल नाउडेज. बिल्कुल, बहुत ज्यादा जज करते हैं हम लोग, बहुत जज करते हैं, एंड दैट इज नॉट गुड एट ऑल. नॉट गुड. तो वहां से आइडिया आया. देन मैं 2014 में मैंने फिर वो स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया और अक्टूबर में मैंने शूट भी किया था इस फिल्म. कुछ 2-3 दिन मैंने शूट किया था. अच्छा, मतलब 2014 में मैंने शूट किया था. ओके, एटलीस्ट आई ट्राई टू शूट द फिल्म. तो तब मुझे उतना आता नहीं था. वीरा सर पिक्चर में नहीं थे? नहीं, तब नहीं थे. वीरा सर थे ही नहीं कहीं. तो तब मैंने अपने एक फ्रेंड को ले लिया था एज एन एक्टर, और वेटर के लिए भी मेरा एक फ्रेंड ही था. तो वो सब हम थिएटर से थे साथ में. तो हम फिर हमने डिसाइड किया कि हम ये फिल्म शूट करते हैं. तो फिर रिहर्सल्स वगैरह किए और फिर हमने लोकेशंस वगैरह सब देख के फिर फाइनलाइज किया और फिर शूट चालू किया. तो मैंने जस्ट कैमरा लिया था अ मंथ बैक, तो मुझे कुछ नहीं आता था कैमरे का, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं अपन शूट करके देखते हैं, जैसा होगा वैसा होगा. देन आई स्टार्टेड विद द शूटिंग. हमने शूट किया फर्स्ट डे. काफी लेट हो गया था तो रात को मैं चेक नहीं कर पाया. तो देन हमने रैप अप किया. फिर मैं घर गया. घर जाके जब मैंने फुटेजेस चेक किए, सारी चीजें एक्सपोजर, फुल एक्सपोजर, कुछ नहीं दिख रहा है. अच्छा, कोई फोकस नहीं, कुछ फोकस नहीं. जो कैरेक्टर है वो डिफोकस. राइट. बैकग्राउंड फुल एक्सपोजर. फर्स्ट अटेम्प्ट. इतना फर्स्ट अटेम्प्ट या राइट. तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो शायद मुझे सीखना पड़ेगा. तो फिर धीरे धीरे फिर मैंने थैंक्स टू यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, वहां से फिर मैंने सारी चीजें सीखी. और फिर धीरे धीरे 2-3 महीने में फिर मैंने अपना जो सिनेमेटोग्राफी सीखा वहीं से. आई नेवर बीन टू अ फिल्म स्कूल. Okay. I've never been to a formal. You have not been into a formal training or sort of. No, never. So मैंने वो सब YouTube ट्यूटोरियल से सीखा. और उसके बाद फिर मैंने एक दूसरी स्टोरी शूट की. वो फिल्म का नाम था 2 Plate Momos. Okay. एंड लकीली वो अच्छी बन गई. और प्रेजेंटेशन उसका काफी अच्छा था. लुक वाइज इट वाज लुकिंग वेरी गुड. And this was in which year? 2015. Okay, next year मतलब. नेक्स्ट ईयर. हाँ, क्योंकि वो साल तो मेरा 2-3 महीने सीखने में चले गया. Right, टिप मैंने 2014 में मैंने कोशिश की थी बनाने की, बट वो नहीं बन पाई. ओके. लेकिन वो स्टोरी मेरे माइंड में इट वाज चल ही रहा था, मतलब हाँ, फ्रॉम पास्ट 6 इयर्स वो चल रहा था. वो होता है ना कि मतलब ये बनाना ही है. हाँ, राइट. तो इट वाज अ वेरी सिंपल स्क्रिप्ट एंड वो बहुत क्लियर था मेरे माइंड में कि मुझे क्या करना है, क्या दिखाना है. बट फिर जैसे जैसे साल बीतते गए और जैसे जैसे फिर मैंने और फिल्म्स में काम किया, कहीं मैंने असिस्ट किया, कुछ फिल्म्स मैंने खुद बनाई, तो और क्लैरिटी आती गई कि फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस है उस पर से गुजरने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो मैं 2 साल पहले 3 साल पहले जो मैं बना रहा था वो यानी क्या था, वो कुछ नहीं था. एमेचरिस्ट था. राइट. हाँ, एमेचरिस्ट था. और फिर धीरे धीरे फिर जब मैं सीखते गया, फिल्म्स देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया. राइट. तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, फिल्म्स का बनाना जो मैं सोच रहा था पहले,
वो कुछ अलग था, लेकिन रियल में फिल्म्स उस तरह नहीं बनाई जाती जिस तरह मैं सोच रहा था। फिर मुझे समझा कि इस तरह फिल्म बनाई जाती है, ऐसे ऐसे लोग लगते हैं, लाइटिंग्स लगती हैं, उसके बाद कैमरे लगते हैं। एक कैमरे से नहीं होता, एटलीस्ट यू शुड हैव 2 कैमरास ताकि आपका टाइम बचे। और ऑडिशंस लेने पड़ते हैं अच्छे एक्टर्स के लिए, आप अपने फ्रेंड्स को कास्ट करके फिल्म नहीं बना सकते हो। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे फिर ये सब चीजें सीखा मैंने, और फिर वन फाइन डे आई मेट वीरा सर। तो उनका फिल्म कोर्ट आया था उसी टाइम, इट वाज बैक इन 2014 ओनली व्हेन कोर्ट रिलीज हुआ था ऑल ओवर महाराष्ट्र। ओके। और मेरे एक क्योंकि इंडिया रिलीज तो बाद में हुई थी, 15 में हुआ, राइट 15 में, राइट। तो मेरे एक अंकल हैं डॉक्टर धर्मेंद्र करके, तो सर उनके रेगुलर पेशेंट हैं, ही इज आई स्पेशलिस्ट, मेरे जो अंकल हैं, तो उनके पास जाया करते थे वो। तो मैंने उनकी फोटो सर के साथ देखी, तो फिर देन आई कॉल्ड हिम एंड आई आस्क्ड हिम दैट हाउ डू यू नो वीरा सर। देन ही वाज लाइक, अरे वो मेरे पेशेंट है, काफी साल से आ रहे हैं हमारे पास। तो फिर मैंने कहा कि यार आई एम कंडक्टिंग अ ऑडिशन, तो इफ यू कैन अरेंज अ मीटिंग और लाइक समथिंग लाइक दैट, हम बात कर सकें। तो उन्होंने फिर मुझे सर से पूछा कि ऐसा ऐसा मेरा भांजा है, वो करना चाहता है, तो कनेक्ट। तो उन्होंने बोला ठीक है, ओके। तो फिर उस तरह सर का नंबर मुझे मेरे चाचा ने दिया, और सर को मेरा नंबर भी मेरे चाचा ने दिया। फिर उस तरह हमारी मुलाकात हुई फर्स्ट ऑडिशन में। लेकिन सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब कमिंग आउट ऑफ कोर्ट? आपने मतलब कोर्ट भी एक इंडिपेंडेंट मूवी ही थी, लेकिन इट वाज मतलब क्या बोले, मतलब प्रॉपर मूवी स्ट्रक्चर के अंदर था। तो आपका इसमें कैसा था, और आपको क्या मतलब कुछ अलग लगता है क्या कि एक फुल लेंथ मूवी और एक शॉर्ट मूवी में कुछ एक्टर्स का प्रोसेस अलग होता है कि दोनों आपको, मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि देखिए, मैंने पहली मेरी जो फिल्म थी कोर्ट, वो तो फीचर फिल्म थी, फुल लेंथ थी, लेकिन उसके बाद जो फिल्म की है, शॉर्ट फिल्म्स भी की है। अच्छा। और जैसा आधा चांद तुम रख लो किया था, मयंक बकोलिया ने बनाया था उन्हें। ओके ओके। तुम रख लो, उसके बाद में दफ्तर बनी थी, उसके बाद में फिर मैं कोसा में भी काम किया, पक्षी फीचर फिल्म है। कोसा आई हैव हर्ड ऑफ कोसा सर। हाँ, तो फीचर फिल्म में भी मैं काम करता रहा, और इसमें भी मैं काम करता रहा शॉर्ट फिल्म के लिए। मैं ये समझता हूँ शॉर्ट फिल्म का एक जो फॉर्म है और फीचर फिल्म में एक कॉमन बात मैं समझता हूँ कि उस डायरेक्टर को, राइटर को जो मैसेज देना है, वो फीचर फिल्म के द्वारा भी दे सकता है और शॉर्ट फिल्म के द्वारा भी दे सकता है। अगर आपके पास में बहुत कुछ कहने की चीजें हो तो आपको शॉर्ट फिल्म में आप नहीं कह सकते, आपको बिल्कुल। लेकिन आपके पास बहुत थोड़ी चीजें है अगर कहने के लिए, और आप किसी खास चीज को ही फोकस करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो शॉर्ट फिल्म बहुत बेहतर है उसके लिए। क्योंकि अभी जैसा हमारे जमाने में हम 3-3 घंटे की फिल्में देखते थे, अब कोई देखना नहीं चाहेगा। अब 2 घंटे से पेशेंस अभी हमारे पास में नहीं रहा है। तो फीचर फिल्म को भी हम लोग 1.5 से 2 घंटे के बीच में समेट लेते हैं, उसी में सब हमको कहना होता है। तो मुझे लगता है कि जो मैसेज देना है, मैसेज के लेवल पर तो मैं दोनों चीजों को मैं सेम देखता हूँ। उसके साथ में आपका कुछ अलग ट्रीटमेंट हो सकता है, अगर आपके स्टोरी को लेकर किसी को, अगर आपको कुछ चीजों को, खास चीजों को दिखाना हो, भले वो कैरेक्टर में दिख नहीं रहा हो लेकिन बैकग्राउंड में दिख रहा हो, तो वो आपके लिए फीचर फिल्म में जाना आपके जरूरी होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शॉर्ट फिल्म ही है, वो मैसेज बिल्कुल 4 मिनट की हो या 8 मिनट की हो या 20 मिनट, बिल्कुल वो मैसेज डिलीवर होना चाहिए सर। आई मीन इफ यू कैन डिलीवर द मैसेज इन अ करेक्ट वे, और वो अगर एफिशिएंट हो जाए और विद एफिकेसी हो जाए, तो बहुत, मतलब शॉर्ट फिल्म से भी प्रभावित हो सकते हैं लोग बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल, या वीरा सर। सर आपने पूछा था कि तो जैसा मेरा पहला एक्सपीरियंस था कोर्ट को लेकर, मैं गया ही था मजाक। अच्छा। एक तो मैं जाने तैयार नहीं था, जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन सोचा चलो फिल्म कैसे बनती है जरा नजदीक से देख लिया जाए। पढ़ने में क्या, देखने में मजा आएगा कि फिल्म बनाए थे कैसे। फिल्म तो मैंने ये सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने ये सुना है कि आप बिल्कुल यू वर द फाइनल पर्सन टू बी कास्टेड फॉर कोर्ट। वो तो मुझे बाद में पता चला, मुझे तो ये लगा कि इनको फोकट में कोई आर्टिस्ट चाहिए। इसके बाद जैसा विपुल ने कहा है कि हमने कोशिश की लेकिन बनी नहीं, ये लोग भी कोशिश करेंगे, बनेगा कुछ नहीं, ऐसे ये लोग हो गए। लेकिन
बड़े प्रतिभावान लोग थे, चैतन्य तामाने वगैरह, बिल्कुल, नो डाउट। इन्होंने जो कास्टिंग डायरेक्टर थे हमारे, वो भी काफी पहुंचे हुए लोग थे। और जब मैं 8-10 दिन के बाद रॉ फुटेज देखा तो मैंने मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर्स के जो हमारा जो क्रू मेंबर्स है, हालांकि मुझे बहुत समझता नहीं था फिल्मों के बारे में, आज भी नहीं समझता है उतना, क्योंकि टेक्निकली मुझे बहुत नहीं समझता कि कैमरा का क्या है, लाइट्स क्या है, उतना मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन क्योंकि जैसे जूरी समझते उस लेवल पे तो मैं नहीं समझ सकता। लेकिन रॉ फुटेज देखने के बाद जब मैंने लोगों को कहा कि भाई फिल्म बहुत बड़ी बनने वाली है। दूसरी बात ये भी मैंने देखा कि एज ए ह्यूमन बीइंग वो लोग इतने बढ़िया थे, मतलब उतने बढ़िया लोग तो मुझे मिले नहीं है अभी तक, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे बढ़िया लोग बहुत ज्यादा होंगे इंडस्ट्री में। बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जो एक छोटे से छोटे कलाकार की इज्जत करना जानते हो। अगर उनके साथ बहुत जरूरी, जितना ज्यादा से ज्यादा सम्मान देने की वो कोशिश करते हैं। छोटा भी अगर कैरेक्टर हो, कैरेक्टर में रोल निभाने वाला अगर कलाकार हो, तो वो बहुत बड़े कलाकार लोग हैं। और ऐसा नहीं था कि चैतन्य तामाने ने कोई फिल्म बनाई थी, इसके लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। उन्होंने कहीं एजुकेशन लिया नहीं, उसका ना एक्सपीरियंस है, उनको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था फिल्म के बारे में। उनको पता था कि फिल्म कैसी बनानी चाहिए, पता है बिल्कुल। जब वो 19 साल के थे तब उन्होंने एक ड्रामा को डायरेक्ट किया था। 21 साल की उम्र में उन्होंने जब एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, सुषमा देशपांडे उसमें थी, बड़ी कलाकार है, वो भी थी उसमें। उसके बाद में जब उनकी उम्र 26 साल की थी तब वो शूट कर रहे थे कोर्ट। तो मुझे लगा कि यार बंदों में दम है और बहुत बढ़िया बनेगी। और बहुत बड़े लोग हैं, मैं क्या तारीफ करूं, बहुत उनको बुरा लगेगा, शायद उनको उचित नहीं लगेगा उनकी ज्यादा तारीफ करना, क्योंकि ये बहुत बड़े लोग हैं। और मैंने उनकी तारीफ करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है, बोले क्या सर आप भी बहुत बड़ा बना देते हैं हमको। लेकिन बहुत बड़े लोग हैं। उनके बड़ेपन के बारे में इसके पहले मैं कई जगह बोल चुका हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो मेरी फीस तय हुई थी पहली बार, और मुझे लगा कि यार ये लोग पागल लोग हैं, मुझे इतना पैसा क्यों दे रहे हैं। मैं बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ इनके रिक्वेस्ट, क्योंकि आपको लगा होगा सर मैंने तो मजाक में हाँ बोल दिया, अब ये क्या हो रहा है। अरे भाई मुझ जैसे आदमी को अगर कोई लीड रोल दे रहा है और पैसा भी दे तो मैं तो उनको बेवकूफ भी समझूंगा ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े कलाकार होने के बावजूद अगर कोई मुझे सिलेक्ट कर रहा है, और मुझे नहीं पता था कि मुझे उन्होंने पहले से सिलेक्ट कर, मतलब मैं फाइनल आदमी हूँ। बाद में जब ये सवाल पूछा गया कोर्ट रिलीज के बाद में मीडिया के द्वारा मुझे कि आपको कैसे सिलेक्ट किया, आप तो बम्बई में भी नहीं रहते, आप तो नागपुर में रहते हैं, जिन्होंने क्या आप उनसे सवाल पूछे नहीं, मुझे क्यों सवाल पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब मैं बोला कि आप चैतन्य तामाने, तब उन्होंने कहा था कि 200 लोगों प्रोफेशनल्स का हम लोगों ने ऑडिशन लेने के बाद हमने तय किया कि इसके लिए, इस कैरेक्टर के लिए केवल एक बंदा फिट है, वो है वीरा साकीदास। 200 के बाद 200 प्रोफेशनल्स के बाद। अच्छा, लेकिन आपको विपुल के मूवी में जो टिप मूवी है, तो उसमें काम करके विपुल का डायरेक्शन, वो एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, वो उनका डायरेक्शन स्टाइल कैसा है? देखिए विजन देख, हम लोग इसके बहुत बार मिल चुके थे, बातचीत कर चुके थे, फिल्मों के बारे में बात करते थे, उनके दिमाग में जो आइडियाज थे उन पर बात करते थे। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर कुछ क्रिटिक करता था, या कुछ इनपुट देने की मैं कोशिश करता था, क्योंकि ये मेरे स्वभाव में है। कोई नया बंदा कुछ काम करना चाहता है तो उसको जितना हो सकता है सपोर्ट करिए, जितना डायरेक्टली करिए, इनडायरेक्टली करिए, सपोर्ट करिए। तो जो विपुल ने मुझसे कहा कि ठीक है मैं आता हूँ, मैं करूंगा इसमें काम, और जब मैं पहुंचा तो मुझे लगा कि मजाक में कुछ कर रहे हैं, लेकिन मजाक पर सर, फिर मजाक, क्योंकि वो नए लोग थे, लेकिन मैं समझ नहीं था मजाक होती है, क्योंकि मैं कोर्स से सीख गया था ना मजाक। उसके बाद में मुझे बहुत पसंद आई फिल्म, एक आधा चांद तुम रख लो, मयंक बकोलिया की शॉर्ट फिल्म है, बहुत प्यारी, आप कभी देखिएगा जरूर उसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल कांस के लिए सिलेक्ट हो गई थी वो। और मैं ये सोच रहा था कि फिल्म में अगर काम करना तो उसके लिए होमवर्क बहुत जरूरी है। और मुझे मेरी ये भावना थी उस समय में जब मैं विपुल के साथ काम कर रहा था, यार तुम लोग होमवर्क बराबर नहीं करते हो, होमवर्क किया करो। भाई शूटिंग लेट हुआ चलेगा, 2 दिन और लेट करेंगे, लेकिन होमवर्क करेंगे हम लोग। आपके पास में पूरी चीजें रेडी होनी चाहिए, समय पे किसी चीज की कमी अगर हो जाए
तो आपका समय जाता है, आपका कैमरा का भाड़ा बैठता है, आपका क्रू खाली बैठा हुआ होता है। अगर थोड़ी सी तो मुझे लगता है कि मैं उनको ये सजेस्ट करता था बार बार कि भाई आप रेडी कर लीजिए सब चीजें, कॉस्ट्यूम हो, मेकअप हो, जो भी चीजें हो, आपका लोकेशन हो, बदलने की जरूरत ना पड़े, एकदम फिक्स, डेट्स भी पूरी फिक्स। राइट। हम लोग कई पुणे में या कहीं और आउटडोर शूटिंग करते हैं तो कई जगह से लोग आते हैं, उनका समय जितना जाया होगा उतना आपका खर्च बढ़ेगा और आप मायूस होते जाएंगे, आप निराश, आपको निराशा घेरने लगेगी। तो उस निराशा से बचने के लिए हमारा और आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए हम पहले से अपनी एक तैयारी करके रखें, यही मैं उनसे कहता था और उन्होंने आखिर में कर लिया। जैसे विपुल, आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू वन थिंग कि ये जैसे आपने देखा कि काफी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया है और अभी जैसे मुंबई फिल्म फेस्टिवल भी वो आएगा, ये आपकी जो मूवी है टिप, तो ये इसका प्रोसेस कैसा होता है? हाँ देखिए, जब फिल्म हमारी कंप्लीट होती है तो उसके बाद एक फिल्म फ्रीवे करके एक वेबसाइट है, वहां पे आपको सारे अपकमिंग फेस्टिवल्स जितने भी थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें आपको सारा डेटाबेस मिल जाता है कि कौन से फेस्टिवल्स कब हैं और उनका क्राइटेरिया क्या है। फिर उसमें आप शॉर्ट फिल्म्स भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं, तो ये सारी चीजें होती है। तो फिर मैंने वो फिल्म फ्रीवे नाम का जो वेबसाइट है वहां फिर मैंने सारा रिसर्च किया कुछ दिन बैठ के और फिर पता चला कि चलो यहाँ पे तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हमको एक साथ मिल रहा है, इतने सारे फेस्टिवल्स भेज सकते हैं। तो हम चॉइस मिल गई मुझे कि मुझे कहाँ भेजना है और कहाँ नहीं भेजना है। तो फिर मैंने नीदरलैंड में भेजा है तो वहां सिलेक्ट हो गई, उसके बाद मैंने यूएस में भेजा, वहां सिलेक्ट हो गई, मैंने पुणे में भेजा, वहां सिलेक्ट नहीं हो पाई, फिर मुंबई में भेजा, वहां सिलेक्ट हो गई, फिर से एक मुंबई के लिए एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनके लिए भेजा तो वहां सिलेक्ट हो गई और अभी मेरी इनसे बात चल रही है डिज्नी हॉटस्टार से। डिज्नी हॉटस्टार, I hope कि things work out. Hoping for so the whole process, the entire process is an online process, right? Yeah. And Vipul, what about the copyrights? I mean the issue of copyrights. So अगर by chance मान लो आपने आपने अपलोड किया और and I mean the you know the piracy thing going on so much in today's world. So how do you secure your movie from that particular thing? फिलहाल तो मंथन सर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सिक्योर करने के लिए आई कैन डू ओनली वन थिंग कि अगर मैं कहीं उसको अवेलेबल करा रहा हूँ तो उसका पासवर्ड मैं अपने पास रखूँ ताकि कोई अगर एक्सेस करना भी चाहे तो वो पासवर्ड के विदाउट पासवर्ड इट विल नॉट ओपन। सो बस मैं उतना ही कर सकता हूँ फिलहाल अपने। बिल्कुल, तो मैं वही करता हूँ। आपको भी मैंने जो सेंड की थी उसके लिए भी मैंने पूरा कंप्लीट प्राइवेसी मैंने ली थी और फिर आपको भेजा था। तो उसी तरह फिर फेस्टिवल्स में भेजता हूँ मैं फिल्म्स और पासवर्ड एक सेट करके रखता हूँ। तो फिर जब वो मुझे बोलते हैं कि वी नीड अ पासवर्ड, फिर उनको मैं पासवर्ड देता हूँ। बिल्कुल, पासवर्ड फिर दैट्स अ बेटर थिंग। इन फेस्टिवल्स का रिएक्शन कैसा रहा? मतलब आपको कुछ उसके बाद मैसेजेस वगैरह तो आए ही होंगे? हाँ, मुझे मेल आया। जैसे कि अभी फर्स्ट फेस्टिवल था नीदरलैंड का, तो तब तो पैंडेमिक चल ही रहा था, तब ऑनलाइन हुआ तो बस मैंने ऑनलाइन ही फिर वो सब देख पाया फेस्टिवल। उसके बाद फिर यूएस का जो हुआ वो भी ऑनलाइन ही हो पाया, तो वो भी मैंने फिर ऑनलाइन ही अटेंड किया। रिसेंटली अभी 4th ऑफ अक्टूबर को इनका हुआ मुंबई वालों का फर्स्ट रील नेशनल फिल्म फेस्टिवल, नेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ मुंबई, वो भी ऑनलाइन ही हुआ, तो वो भी फिर ऑनलाइन ही अटेंड करना पड़ा। कि व्हेन यू सेंड योर मूवीज टू दी सच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स, उसके बाद से आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आई क्या? मतलब आफ्टर यू सेंड टिप और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिले या ऑडियंस बेस आपका वाइड हुआ है? हाँ, अभी आई एम इन टॉक विद अ टीम फ्रॉम पुणे। दे आर बेसिकली लाइक ट्राइंग टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री फेमिनिज्म के ऊपर, तो उनसे एक बात चल रही है और फिर मैं खुद से ही कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह अभी लिख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ खुद के लिए, ताकि नेक्स्ट फिल्म के लिए फिर मैं वो स्क्रिप्ट्स यूज कर सकूं। और बेसिकली वो सारी दलित बैकग्राउंड से ही रहेगी आगे भी स्क्रिप्ट जो मैं करूंगा। बट मैं चाहता था कि इसके बाद जो मैं काम करूं, ये इसके बाद का जो काम रहेगा, इसके पहले जो मैं अभी मेरा प्लानिंग था कि एक फिल्म तो अभी ऐसा करना है, वेदर इट बी अ शॉर्ट फिल्म और शॉर्ट फीचर जो भी रहेगा,
एक फिल्म ऐसा करना है जिसमें एक नोन आर्टिस्ट मुझे कास्ट करना था, और मैंने सोचा था कि उसको फेस्टिवल्स में मैं जरूर भेजूंगा। और तीसरा कि इसके बाद फिर अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो फिर मैं आई कैन अप्रोच पीपल, बिकॉज व्हेनेवर आई विल अप्रोच देम तो दे विल हैव ओनली वन क्वेश्चन कि आपने क्या किया है, तो आई शुड हैव समथिंग टू शो देम कि हाँ मैंने ये किया है और आई हैव वर्कड विद वीरा सर, और फिर दिस फिल्म हैज बीन टू सेवरल फिल्म फेस्टिवल्स, एंड बाकी सब चीजें बहुत होती हैं, बिकॉज व्हेन यू मेक अ फिल्म एक वैलिडेशन आ जाता है आपके सीवी में, एक वैलिडेशन आ जाता है। Yes. Or because when you make a film, so the only thing which you need while making a film is finance. तो finance अगर आपके पास है तो you can make a good film. Right. हाँ, but finance ही है सब कुछ, but story अगर आपकी अच्छी ना हो तो फिर आप जो कहना चाहते हैं, जो आपके पास स्टोरी है, अगर वो ठीक ना हो तो फिर एक तरीके से आप वो पूरा पैसा यू आर रिस्किंग इट ऑल, किसी और का पैसा रिस्क पे नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए स्टोरी भी वैसी चाहिए। तो मैं इसीलिए हाँ, जैसे आपने कहा है कि मतलब रिस्क फैक्टर एक है, जैसे यू आर अ डायरेक्टर योरसेल्फ और वीरा सर भी राइटर है तो वो भी लिखते हैं, तो बीइंग मतलब कमिंग आउट ऑफ द इंडिपेंडेंट सीन, मतलब वो कितना हार्ड है कि आप जाके एक प्रोड्यूसर को अप्रोच करें फॉर अ मूवी दैट यू आर थिंकिंग टू मेक। आजकल हम लोग एक आई डोंट नो, आई मीन वेदर यू बोथ विल एग्री, मतलब वीरा सर भी एग्री करेंगे या नहीं, I think there is a shift अभी, मतलब content is being very emphasized nowadays, तो ये एक shift हम लोगों को देखने को मिला है शायद आजकल। नहीं, सही बात है, अगर कंटेंट आपका अच्छा है तो वो जरूर लोग देखेंगे, वो बिकेगा। और अभी सब कुछ डिजिटल हो गया है, थैंक्स टू नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न प्राइम, इनके वजह से फिर लार्जर ऑडियंस बेस को हम लाइक अप्रोच कर सकते हैं, और फेस्टिवल्स के थ्रू तो होता ही है अपना काम, बट अगर नेटफ्लिक्स, अमेज़न या फिर हॉटस्टार, जितने भी हैं, अगर वहाँ पे अगर हमारे फिल्म को अगर जगह मिलती है और वहाँ पे स्क्रीनिंग होती है तो फिर ज्यादा ऑडियंस बेस बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं फिर आपका काम ज्यादा लोग तक पहुँचता है, और फिर आपको अप्रोच करने के लिए भी अच्छा हो जाता है किसी को। जैसे अगर मुझे फिल्म बनानी है और मुझे किसी को अप्रोच करना है तो मेरे पास रहेगा एटलीस्ट आई विल हैव सम बायोडेटा टू शो देम कि देखो मेरा फिल्म यहाँ है ऑलरेडी और ऐसा ऐसा चल रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस में आता है आगे वाला कि हाँ चलो ठीक है, इसने इसके पहले किया है। एंड आपने जैसे कहा कि इज इट डिफिकल्ट और इजी टू लाइक फाइंड अ फाइनेंसर, नहीं, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट, आसानी से नहीं मिलता है, इट टेक्स टाइम। कैटेगराइज करना चाहता हूँ दो चीजों में, बिल्कुल, कि जब हम लोग कहते हैं कि लोगों तक पहुंच जाना चाहिए, तो हम लोग क्या क्वांटिटी के हिसाब से देख रहे हैं फिल्म को? अगर बहुत लोग देखते तो जिसे हम लोग लोकप्रिय सिनेमा कहते हैं, सिनेमा है कि जो लोकप्रिय सिनेमा उसको बहुत सारा ऑडियंस मिलता है, जैसे बाहुबली है, लेकिन फैंड्रिक का को देखने वालों की संख्या स्वाभाविक रूप से आपको कम मिलेगी, देखने वाले लोगों की संख्या कम मिलेगी आपको, या कोर्ट को देखने वाले लोगों की संख्या आपको कम मिलेगी। अब सवाल यह है कि हम फिल्म कौन सी बनाना चाहते हैं, है ना? कि मुझे लगता है कि फिल्म हमें अगर केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से अगर हम फिल्म बनाना चाहते हैं, अभी एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था जो चैतन्य तमाली ने डिसाइपल पर एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने ये कहा कि हम लोग फिल्म को आर्ट के रूप में नहीं देखते, हम उसको फास्ट फूड के रूप में देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम लोग फिल्म बनाएंगे, लिखेंगे या फाइनेंसर से हम लोग बात करेंगे, हमें फिल्म बनानी है जो दुनिया में चर्चा करे, जिसके जूरी उस पर चर्चा करे, रिव्यू लिखे जाए उसके बारे में, और रिव्यूज पढ़कर लोग फिल्म देखे। कई लोग तो रिव्यू देखने के बाद ही फिल्म देखते हैं, है ना? बिल्कुल रिव्यूज लिखे जाए, फिल्म फेस्टिवल्स में, ज्यादा फिल्म फेस्टिवल्स में उस पर चर्चा हो, है ना? तो ऐसी एक फिल्म है कि जो और जरूरी भी है हम लोगों के लिए, वो फिल्म जरूरी है हमारे सोसाइटी के लिए, क्योंकि फिल्म का माध्यम है, उसका जो उद्देश्य है, हम लोगों को अपने उद्देश्य की तरफ उस फिल्म को कैसे इस्तेमाल करें। मेरे लिए तो एक साधन है फिल्म मेरे लिए कोई साध्य नहीं है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। फिल्म मेरे लिए मेरे लक्ष्य को आगे ले जाने वाला एक माध्यम है, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल सर, मैंने अभी आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द सोर्स, मैंने कहीं देखा भी था, एक वीडियो में देखा था, अगेन आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हु सेड इट, बट आपने जो अभी कहा बिल्कुल वही चीज है कि मतलब लोग जब फिल्म को एक मीडियम की तरह सोचते हैं
तभी वो एक सोल सेटिस्फेक्शन भी होता है और एक वो भी होता है ना कि मुझे अच्छा लगा ये मूवी बना के, ना कि वो एक कमर्शियल विजन से वो बनाए कि नहीं मुझे बनाना ही है तो बनाऊंगा मैं, ये मुझे पैसा कमाना है। बिल्कुल यही चीज आपने बोली सर, मतलब यस आई मीन या एब्सोल्युटली। मुझे नहीं पता क्यों नहीं बोली, लेकिन मेरी तो ये सोच है। मैं भी बोल गया सर वो, सो मैं भी बोल गया क्योंकि तो बिल्कुल जो आपने कहा बिल्कुल सर। माय पॉइंट वाज कि मतलब जैसे आप मैं ट्रूली एग्री विथ व्हाटएवर यू सेड राइट नाउ, लेकिन उसके लिए भी सर फाइनेंस तो इम्पोर्टेंट है ही। मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू फाइंड अ प्रोड्यूसर, तब आपका प्रोड्यूसर एक मिल जाता है, एक बिग बजट अगर होता है, हम अगर स्टोरी वैसे ही रखते हैं तो आपके मतलब सारे चीज अच्छे हो जाते हैं, एडिटिंग अच्छा हो जाता है, आपका सिनेमेटोग्राफी अच्छा हो जाएगा, तो वो भी एक इम्पैक्ट लाता है। तो आई थिंक प्रोड्यूसर्स को मतलब अप्रोच करना अलग, आपको मैं लाइक आई वांट टू नो योर ओपिनियन कि मतलब हाउ इम्पोर्टेंट कि एक प्रोड्यूसर ढूंढना, प्रोड्यूसर एक अगर आपकी शॉर्ट मूवी भी हो उसको अगर कोई फाइनेंस कर रहा है तो वो फिल्म के एंड रिजल्ट में क्या रिजल्ट में वो चेंज लाता है, मतलब इम्पैक्ट क्या होता है उसका सर? देखिए किसी भी फिल्म को फाइनेंस चाहिए ही चाहिए होता है। जिन लोगों ने बनाया उन्होंने वो उसके लिए प्रोड्यूसर जो तो नवलखा जी जो थे उन्होंने बनाए थे ना, वो कई सारी फिल्म उन्होंने बनाई है, लेकिन उन्हें भी एक इंटरेस्ट है कि ऐसी अच्छी फिल्में बनाई जाए। शशि कपूर जी ने जब वो एज ए प्रोड्यूसर जो उन्होंने फिल्में बनाई है, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ एज ए प्रोड्यूसर। शशि कपूर साहब उनके पास एक विजन था, उन्होंने कई फिल्मों में काम किया एज ए एक्टर, लेकिन जब उन्होंने किया फिल्मों को तो उन्होंने जुनून बनाया, कलयुग बनाया, उत्सव बनाई, तो उन्हें पता था कि कौन सी फिल्म में जाना चाहिए सोसाइटी में। तो लगता ही है, लेकिन फाइनेंसर को भी उसका भी एक अपना आइडिया क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों फाइनेंस करूं, इस फिल्म को मैं फाइनेंस। मतलब प्रोड्यूसर्स फाइनेंसर्स को भी एक वही विजन होना चाहिए कि मैं अगर ये फिल्म बैक कर रहा हूं या हम अगर ये फिल्म बैक कर रहे हैं तो this should be the film which conveys the message of the team, of the entire team, not only the director but the entire team including the actors, the technicians. उनका जो मैसेज है वो कन्वे होना चाहिए। So producers mindset is also very important I guess. और मैं ये समझता हूँ कि ये जरूरी नहीं कि आपने कितनी फिल्में बनाई है, फिल्में बनाई है ये तो हम लोगों ने देखा है सर। आप दोनों एग्जाम्पल हो सर उसके लिए। नहीं, MS सत्तू साहब ने एक फिल्म बनाई थी गर्म हवा, आज भी MS सत्तू साहब का नाम है। के आसिफ ने फिल्म बनाई थी मुगले आजम, आज भी बिल्कुल नो डाउट सर, है ना। तो मुझे लगता है कि हम कौन सी फिल्में बना रहे हैं। आपने 25 फिल्में बनाई होगी, लेकिन अगर आप एक अच्छी फिल्म बनाएंगे तो आपको एक फिल्म के कारण जाना जाएगा। बिल्कुल नहीं जाना जाएगा आपको। एब्सोल्युटली, मैं समझता हूँ। एब्सोल्युटली, आप एक ही बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट बढ़िया फिल्म बनाइए, अच्छी फिल्म बनाइए, हाँ सालों साल लोग आपको याद करें। बिल्कुल। विपुल, आपके मूवी के लिए मतलब सर जो टिप है, आपने जो मूवी बनाई उसके लिए फाइनेंसिंग का प्रोसेस कैसा रहा, मतलब किसने प्रोड्यूस किया और डिड यू फेस एनी डिफिकल्टी? Yeah, basically, how did you get your team together? How did you manage to get your team together? Like I was the only person who was producing the film. अच्छा। तो पैसा तो मैंने लगाया, because पहला प्रोजेक्ट था जिसको हम कह सकते हैं कि इट वाज अ प्रोफेशनल प्रोजेक्ट। इसके पहले के सारे प्रोजेक्ट्स मैंने अपने लेवल पे बनाए थे। तो फॉर दिस फिल्म आई नीडेड सम मनी, तो बट आई ट्राइड टू अरेंज सम फाइनेंस, बट हो नहीं पाया, तो फिर मुझे ही करना पड़ा। और उसके बाद फिर टीम मैंने पुणे यूनिवर्सिटी में जो कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो पास आउट थे मीडिया उनका जो ये था, उन्होंने ये किया था, मास्टर किया था मीडिया में, तो उनको अप्रोच किया। फिर उन्होंने मुझे कुछ टीम अरेंज करके दी। फिर उसके बाद एक्टर्स के लिए वीरा सर से मेरी बात हुई थी, बट प्रॉब्लम ये हो रहा था सर के साथ, वीरा सर के साथ, कि जब भी मैं नागपुर आता था और जब मैं सर से मिलता था तो उस टाइम पे सर अवेलेबल नहीं रहते थे बहुत बार। तो फिर हमारी फोन पे बातचीत होती थी, फिर जब सर आते थे तो फिर हमारी मीटिंग होती थी। राइट। और फिर जब हमारा कुछ ऐसा हम किसी कंक्लूजन में पहुंचते थे तो एक डेट हम डिसाइड करते थे, बट फिर उसके बाद वो डेट जैसी पास आती थी तब सर का कुछ और काम निकल आता था। Right. तो ऐसा करके 2-3 महीने निकल गए, बट आई वॉज श्योर इनफ कि मुझे अगर फिल्म करना है तो सर के साथ ही करना है और मैं वेट करूंगा। हाँ,
ये मेरा शुरू से ही क्लियर था और मैंने सर को यही कहा था लास्ट कॉल मेरा जो सर को था फिल्म शूट शुरू होने के पहले, तो सर को मैंने यही कहा था कि सर मेरे को फिल्म बनानी है और वो आपके साथ ही बनानी है, तो चाहे मुझे फिर 2 महीने 3 महीने या 4 महीने वेट करना पड़े तो आई विल वेट, नॉट एन इश्यू। सबको नजर में रखकर ही मैंने वो स्टोरी लिखी थी और स्टोरी ऐसी थी कि इट वाज मोर देन डायलॉग्स। आई मीन डायलॉग्स तो ठीक है, यू कैन इफ यू वांट टू कन्वे समथिंग सो फॉर दैट यू नीड डायलॉग्स, बट कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं कि अपार्ट फ्रॉम डायलॉग्स बिना बोले व्हाट एल्स यू वांट टू कन्वे, हाँ व्हाट एल्स यू वांट टू कन्वे, विजुअल्स के थ्रू आप क्या बताना चाहते हो। तो ये फिल्म मैंने कॉन्शियसली, एक मेरा कॉन्शियस एफर्ट था कि इसमें मुझे बीजीएम नेचुरल रखना है, जो एम्बियंस साउंड है वो रखना है। मैं चाहता था कि लोग जब ये फिल्म देखें तो इसको एज अ फिल्म ना देखकर एक जो रोज हम देखते हैं हमारे ह्यूमन आई को जो हम एक इमर्सिव एक्सपीरियंस हो, तो हमने भी वैसा ही फील किया। या तो एडिट भी जब मैं कर रहा था फिल्म, तो एडिट करते वक्त मेरे माइंड में ये क्लियर था, आई वाज क्लियर इनफ कि मुझे सैचुरेशन वगैरह जो बहुत चीजें होती है, सैचुरेशन और वो कलर करेक्शन, वो मुझे एकदम बेसिक लेवल का रखना है। एक ह्यूमन आई को जो एक दे आर यूज्ड टू ना, राइट एक विजन होता है, तो वो ही दिखे, ऐसा कुछ ज्यादा सैचुरेटेड कुछ ज्यादा ना दिखे और रिलेटेबल लगे। एक आम इंसान भी अगर फिल्म देखे तो उसको लगे कि हाँ ये मेरे साथ हो चुका है या ये रिलेटेबल लगे। बिल्कुल। तो मैंने एकदम सिंपल रखा, म्यूजिक का बहुत कम यूज किया है मैंने। अभी आपका जो आपने देखा, फिर आपने जो मुझे अपना रिव्यू दिया, तो अब मुझे लगता है कि हाँ इट वर्कड समवेयर, इट वर्कड। We thought, yeah, because we can't speak about others, but we think it has paid off. क्योंकि जैसे आपने अभी कहा कि मतलब काफी सीन्स को मतलब ऐसा होता है कि डायलॉग के बिना भी एक मैसेज पोर्ट्रे होता है। जैसे आपके मूवी का भी वो लास्ट सीन था जब वीरा सर बाहर निकल रहे थे, देयर वाज अ सीन वेयर 35 रुपीस को काट के फिर नीचे 50 लिखा गया था। तो हाँ, तो पूरा मूवी का इम्पैक्ट बस उसी एक सीन से आ गया मतलब। राइट, हाँ, यस। मुझे लगता है कि वही उसका खास सीन है जो मैसेज, वही राइट सर, वही एक सीन है क्योंकि एक अच्छे इंसान जो पूरी इमेज बनती है उस गार्ड की, एक अच्छा इंसान है ये। बिल्कुल, बहुत अच्छा आदमी है और बहुत केयर करता है दूसरों की भी। उस सोसाइटी में भी वो केयर कर रहा है और बहुत कॉन्शियस है कि मेरे हाथ से कोई ऐसी चीज ना हो जिससे किसी को दुख पहुंचे। बिल्कुल, सभी के साथ में बहुत अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश भी करता है। वो जो कैरेक्टर गया है वहां से, तो मुझे लगता है कि वो बहुत, और सही कहा है विपुल ने कि वो पूरी जिम्मेदारी जो निभाया था वो विपुल ने निभाया था। हालांकि पूरा भार उस पर आ जाने से रिसोर्सेस को इधर उधर से पूरा इकट्ठा करना, वो भी काम विपुल ने किया था। तो स्वाभाविक है कि उस पर एक पूरा बर्डन आ गया था और पहली फिल्म है और वीरा सतीलाल काम कर रहे हैं हमारे साथ में, तो एक प्रेशर आ जाता है। कर देता हूँ, मुझे पता है कि कई लोगों के साथ में ऐसा प्रेशर आता है। मेरे एक फिल्म तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, एक शॉर्ट फिल्म, इसलिए कि मेरे सामने जो मेरा प्रोजेक्टर था वो एक्टिंग ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि वीरा सतीलाल सामने बैठा हुआ है। तो सर वो तो एक्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग पॉडकास्ट के लिए हम लोग नर्वस हो गए हैं सर। ये होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो निराशा जो है या जो आत्मविश्वास में जो कमी आ रही है उसको मैं खुद होकर उसको जरा दूर करूं, ताकि एक जो माहौल बने वो जरा अब एकदम एक लेवल पे आके हम लोग बात करें। बिल्कुल मैं खुद कोशिश करता हूं। सर की बात अभी जो कह रहे थे उस पर मुझे एक इंसिडेंट से याद आ गया, शूट पर का इंसिडेंट है। इस पर से आप समझ सकते हैं कि सर का कितना सपोर्ट था मुझे। हमारा फर्स्ट डे था एंड वी वेंट ऑन द फ्लोर, वी वर शूटिंग विद फुल फ्लेज, सब कुछ हमारा सेटअप। अनदर थिंग इज शूटिंग भी आपकी नागपुर में ही हुई थी? नहीं, पूना में। ओके, यस, पूना में। तो पूना में हम शूट कर रहे थे। इट वाज आवर फर्स्ट डे। हमने सारी प्लानिंग कर ली, डिस्कशन हो गया, सीन्स रेडी हो गए, फिर सारे कॉस्ट्यूम्स हमने अवेलेबल कराए। सर वाज रेडी, फिर जो दूसरा वेटर था ही वाज आल्सो रेडी। हम गए बाहर, लोकेशन पर गए, शूटिंग स्टार्ट की। शूटिंग स्टार्ट करने के बाद हमारा हमने 2 घंटा शूट किया था। 10 मिनट ब्रेक होने के बाद हमने जब फिर से शुरू किया तो उस दौरान एक इंसान आ चुका था शूटिंग पे, प्रीमाइसेस में, वो शूटिंग प्रीमाइसेस में। हम जब शूटिंग चालू किया हमने फिर से बाहर से कोई, और वो देख रहा था
और वो देख रहा था। फिर मैंने नोटिस किया कि वो जो देख रहा है वो देखते देखते बात भी कर रहा है, और वो उनकी जो आवाज है उनके कारण मेरा शूट डिस्टर्ब हो रहा है। तो उनको मैंने फिर सिनेमेटोग्राफर को कहा कि आप थोड़ा रोक लीजिए, मैं उनसे जाके बात करता हूँ, थोड़ा धीरे बात करिए, शूट कर रहा हूँ। तो फिर मैं उनके पास गया, बात किया, तो वो कुछ अलग ही मूड में था शायद इंसान उस दिन। तो मैंने उसने मुझे ही क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू किया कि हु आर यू। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो ड्रेस आपके कैरेक्टर ने पहना है वो ड्रेस जिस एजेंसी की है वो एजेंसी का मालिक मैं हूँ। फिर तो क्या कहना चाहते हैं? तो बोले आपने मेरे परमिशन के बिना ड्रेस कैसी यूज की? तो मैंने उनको कहा कि देखिए हमारे यहाँ पे जो वॉचमैन थे, अब हम जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने उनसे भी कहा कि वॉचमैन अब हमारी सोसाइटी में भी है, तो उनको मैंने कहा कि आपके पहचान में कोई वॉचमैन वाला कोई एजेंसी अगर होगा तो उनसे मेरी बात कराइए। मैं ड्रेस अगर होता है अरेंज तो अच्छा हो जाएगा उनके थ्रू। तो उसने हमारा वॉचमैन ने मुझे कहा कि अरे आप सर इधर उधर क्यों जाते हो, मेरे पास एक्स्ट्रा ड्रेस पड़ा है ना, आप मेरा ड्रेस लेके जाओ। उसके बाद फिर वो इंसान ने आके प्रॉब्लम क्रिएट किया कि नहीं हम कैसे मान ले कि आप ये कुछ अच्छी चीजें शूट कर रहे हो, इट इज नॉट एंटी नेशनल थिंग विच यू आर शूटिंग, ये सारी चीजें बोलने लगा। तो ये सब जब चल रहा था तो आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम कि नहीं हम वी आर शूटिंग अ स्मॉल शॉर्ट फिल्म। मैं वो अंकल से बात किया 5 मिनट, और फिर मेरे को थोड़ा सा लगा कि सर चले गए, अब सर अगर बुरा मान गए, सर को गुस्सा आ गया कि यार तुमने ये सब पहले सॉर्ट आउट क्यों नहीं, पता है कि बाहर से, जैसे कि सर ने भी कहा कि बाहर से लोग आते हैं आपके शूट के समय लेके आते हैं, तो आपको हर एक चीज रेडी चाहिए। और दिक्कत ये थी कि सारी चीजें मैं कर रहा था मैनेज, परमिशंस, सिनेमेटोग्राफ, यानी कास्ट एंड क्रू का पूरा हर एक चीज मैं ही अरेंज कर रहा था। तो कहीं ना कहीं 1% कुछ ना कुछ छूट जाता है, चाहता तो नहीं था मैं कुछ छूटे, पर छूट गया एक चीज, और वो अननोइंगली एक गलती हो गई मुझसे। तो मैं बहुत टेंशन में आ गया कि अब क्या, ठीक है इनको तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन सर जो अभी अंदर गए हैं, मुझे लगा कि शायद एंग्री, ही मस्ट बी एंग्री, एंड इट इज बिट ऑब्वियस कि हाँ वो एंग्री होंगे, गुस्सा तो आएगा ही उनको। तो फिर मैं 5 मिनट तक बाहर ही खड़ा रहा, और मैं आई वॉज गेटिंग करेज कि चलो मैं अंदर जाके सर से बात कैसे करूं, क्या बोलूं, किस तरह उनको फेस करूं, क्योंकि ऐसा एकदम से बहुत बड़ा इंसिडेंस हो गया। फिर मैं सोचा कि नहीं बात तो करना पड़ेगा। अंदर गया, सर बैठे थे अपने रूम में, और सर को मैंने बोला सर आई एम सो सॉरी ये हुआ। तो सर वाज लाइक अरे कोई बात नहीं, ड्रेस का टेंशन है ना, अरे मैं जुगाड़ कर देता हूँ तो टेंशन मत ले। सर ने फिर एक अपने बंदे को फोन किया, उन्होंने फिर ड्रेस के लिए अरेंजमेंट्स की, और फिर उन्होंने सेकंड डे फिर भी अगेन रिज्यूम विद द शूटिंग। तो इस तरह फिर है सर का इतना सपोर्ट था। मैं भी सजीब को उस दिन बोल रहा था कि सजीब यार एक बहुत ही मतलब भयंकर चीज हो गई। तो सजीब ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा कि मैंने वीरा सर को फोन लगाया तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब वो उठा नहीं पाए, तो उन्होंने मुझे कॉल, मतलब मैंने सेकंड टाइम जब कॉल किया तो कॉल उठाते ही वीरा सर ने बोला हाँ जी मंथन जी बोलिए, और मुझे ऐसा लगा कि अरे मेरा तो दिन बन गया आज। मैंने बोला अरे मेरा हो गया, मेरा तो और कुछ मैं क्या ही बोलूं। वीरा सर ने बोला मंथन जी क्या हाल है बताइए। So yeah, I mean, and for a director also, it is so it becomes so comfortable. It becomes more comfortable for you to work with such artists. And having Veera sir on the board, it was a big responsibility for me and my all the crew, because we were a bit nervous and excited also because it was our first project and Veera sir was on the board, and एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, खासकर मेरी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आई वाज द ओनली वन हु वाज लाइक मैनेजिंग ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, बट वो हो गया अच्छी तरह, एंड फाइनली द फिल्म कंप्लीटेड एंड अभी वो फेस्टिवल्स में है, तो इट फील्स गुड। Of course. और आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं तो अच्छा ही लग रहा है अभी भी। बिल्कुल जो बात कह रहे हैं आप, मैं आपके माध्यम से मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते, एज ए एक्टर, एज ए डायरेक्टर, एज ए कैमरामैन, एज ए जो भी हो, स्पॉट बॉक्स से लेकर तो डायरेक्टर तक, आप जिस भी भूमिका में अपना रोल अदा कर रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके कलीग्स को आप कैसा मोटिवेट करें। बिल्कुल, अगर वो नर्वस है तो उसका नर्वसनेस को निकालने की जिम्मेदारी आप पर आती है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ आदमी है, जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं। अगर एक भी व्यक्ति ठीक से काम कर नहीं पाए किसी वजह से, किसी कारण से,
तो आपका प्रोजेक्ट अफेक्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्शन है वो एक अकेले का प्रोडक्शन नहीं है। ऐसा कई बार होता है, मैं कई बार कई फिल्मों में जब काम करता हूँ तो कुछ ना कुछ लोग, जैसे मेरे सामने आने से भी लोग डरते, लोगों के नाम में पता नहीं क्या है कि एक वीरा साथीदार एक बहुत बड़ा अमिताभ बच्चन जैसे कोई बेटे वीरा साथीदार भी तुम्हारे जैसा ही एक आदमी है, ये मुझे समझाना पड़ता है उनको। पर वो आप नहीं समझ सकते सर। सर वो आप नहीं समझेंगे क्योंकि आज like before Vipul joined and Manthan also joined, Veera sir joined the meeting first and then I was there with Veera sir. तो मैं खुद नर्वस हो रहा था कि मैं अब क्या बोलूं इनको। और सजीव ने मुझे मैसेज किया, अरे वीरा सर आ गए। तो या and for Vipul also, I mean we as you can say cinema lovers or film writers में or whatever, हम लोगों को कितना अच्छा लगता है जब ऐसे बडिंग एस्पायरिंग इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स जब ऐसे मूवीज बनाते हैं। तो we as cinema lovers we also feel very secure कि नहीं, हमारे देश में भी ऐसे मूवीज बनते हैं and we feel it is our responsibility, क्योंकि हम लोगों ने ये पेज we have started this page, we should write about such kind of filmmakers or such kind of films or such kind of artists जो जिनको मतलब मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिनको पता ही नहीं है कि ऐसे भी मूवीज है, ऐसे भी फिल्म्स है, कितना मतलब दे आर जेम्स, इनफैक्ट जेम्स ऑफ इंडियन सिनेमा, और मेजॉरिटी को पता ही नहीं है। So, आपको याद होगा कोर्ट के बाद में न्यूटन जब ऑस्कर के लिए गई थी और उसके बाद में गई थी राइट आसाम में पहली फिल्म है जो आसामी फिल्म को इतना बड़ा कवरेज मिला है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। और मेरे एक फिल्म में कोसा में जिन्होंने जो रिकॉर्डिस्ट थे हमारे वो आसामी थे, तो मैंने उनको तुरंत मैसेज कर दिया कि यार आसामी फिल्म गई है ऑस्कर के लिए रीमा दास, तो उनको अच्छा लगा। बोले सर ये न्यूज मुझे देने वाले आप पहले आदमी हैं। बोला भाई एक ऐसी फिल्म गई है, एक ऐसे फिल्मकार की फिल्म गई है जिसके पास कोई क्लू ही नहीं है, बिल्कुल राइटिंग नहीं है, कैमरा ढंग से नहीं है, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर्स नहीं उनके पास में, 35 लाख में बनी हुई फिल्म को आप देखिए कि क्या बनी है। नो डाउट। तो ये फिल्में लोगों तक नहीं पहुंचती है, लोगों को पता तक नहीं रॉकस्टार क्या है, रीमा दास क्या है। हम लोगों ने भी यही सोच के स्टार्ट किया था कि व्हाई नॉट राइट अबाउट दीज काइंड ऑफ मूवीज जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं। जैसे आपने कोर्ट और नाउ टिप हैज कम अप, बी इट अ शॉर्ट फिल्म बट स्टिल पिथी, Village Rockstars, I mean these movies, I mean they are like on a different level, but yes, I mean most of the people don't know, but we would try to bring it out to a larger base, right? And we are so privileged, we are so honored that you both joined us. In fact ये हमारा पहला podcast है हमारे Screen to Script का, and we are so lucky to get both of you on board. एंड आपके प्रेशियस टाइम से आपने इतना टाइम निकाला हम लोगों के लिए, आई मीन वेरी थैंक यू सो मच। Honestly, thank you sir, and thank you Vipul for giving us the time. And before we leave, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। Thank you so much sir, thank you so much. Thank you sir, thank you. Thank you. और Vipul, before we leave, अभी do you want to tell the audience about कहाँ आपकी मूवी हम देख पाएंगे फिर, और कहाँ the release date, platform, is it that still you have to decide on that, or trailer तो आ गया है, trailer is on YouTube already, and the film is going to have a premiere on a platform by the name Short Film Window, maybe later this week I guess. So they can watch the film over on a Short Film Window. Okay. And yeah, and if things work out, then if Disney Hotstar वाले अगर they approve it, तो वहाँ फिर देख पाएंगे सारे लोग साथ ही में। Of course. God willing बिल्कुल होगा। Yeah, fingers crossed. इतनी अच्छी मूवी बनाई है आप लोगों ने, तो होगा। Thank you so much. Manthan and Sajid. Yeah, Manthan and Sajid, you are doing an amazing job. Actually, I've been through all your feeds and I have seen all your reviews which you have given for the films. It's amazing, man. Alright, thank you so much. Keep going. Thank you. Thank you. Namaskar, Veera sir. Thank you so much. Thank you, sir.
सभी को नमस्कार। थैंक यू, फिर मिलते हैं सर। और another thing I would like to say, actually हमारे SMEs community में there is an auspicious festival called Bihu. Right. If you know, तो आज there is आज एक बिहू है, it is called काकी बिहू। तो हमारा जो ये पॉडकास्ट है, it has been auspicious day, auspicious day पे हम लोगों ने वो किया है। तो आज बिहू, हैप्पी बिहू टू बोथ ऑफ यू। बिल्कुल, थैंक्स एंड सेम टू यू। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू and yeah, thank you so much everyone for watching the podcast with us, and please don't forget to like and share the video, and also subscribe to our YouTube channel. Thank you. Very important, please subscribe to our Street to Street YouTube channel. So yeah, take care, thank you so much, bye bye.